Okay, good evening everyone. Am I audible and visible? Click enjoy. Click and enjoy. Who is this? Good evening, Bharti, Priya. Good evening, Milan. Good evening, Sujata, Garima, Ekta. Good evening, Savita. Good evening. Okay, fine, everyone. Welcome to Conquer Learning and welcome to today's session when we are going to continue our Industrial Relation Code 2020 Part 3. Someone please share in the group that the class has been started and they would be able to join. Okay, so good evening everyone. Let others join and we would be starting. Lucky, good evening. Okay. So meanwhile, others little bit echo, please. It's because of the headphone, uh, earphone. Yes, Priya, please refresh from your side. So everyone, welcome to Conquer Learning and welcome to today's session of Industrial Relation Code 2020 Part 3. Before I start and meanwhile others are joining, let me introduce myself. My name is Lakshmi Kushwaha and I'm verified educator on an academy and content creator on an academy. So you can follow me on the academy link if you want to go through the courses related to code 55. You can use my code Lakshmi K Live whenever you want to subscribe for the plus channels of us plus courses on an academy. Yes, Supriya, yes. This is my profile on an academy where you can find me by the name Lakshmi Kushwaha and you can enroll and to the special as well as the plus classes. This is the series which is right now going on an academy. Again, it is for the free platform. You can enroll and then you can enter it. Fine. So we have started our Industrial Relation Code 2020 as a series. So the last session that we did, it was the session we have completed till retrenchment. It was till retrenchment. We completed the definition till retrenchment. Today we would be moving, no, settlement also, I believe settlement also, yes. Settlement हो गया था, standing order हो गया था, ये मैंने definitions समझा दिए थे. आज we would be starting with the definition of strike. Very important definition, you need to understand from exam point of view, समझना जरूरी है. Strike का मतलब क्या है? A cessation of. Strike मतलब क्या? जब a group of people 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, when the group of the people together in common interest, together in concreted refusal, together in common understanding and in combination, they all are working in industry and they together in combination have ceased to work, have refused to work for the employer. This is called as an strike. जब 4 5 10 12 लोग मिलकर, मतलब एक बॉडी ऑफ पर्संस मिलकर एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करने से कॉन्क्रीटेड रेफ्यूजल कर देते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में मना कर देते हैं टू कंटिन्यू टू वर्क और टू कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट. इसे हम स्ट्राइक कहते हैं. जब लोग काम पे नहीं आते, वो कहते हैं हम नहीं काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक. What you have to remember in the definition of the strike is the cessation of the work by a body of person. They are acting in industry in combination. They have concrete refusal under common understanding, and it can be by any number of the person who has been employed in the organization or who have accepted the employment in the organization. Clear? ये point clear हो गए आपके? The cessation of the work by a body of a person employed in any industry acting in combination or a concreted refusal or a refusal under a common understanding. I'm not clear? Is it? सभी के लिए? क्या नहीं समझ में आ रहा है? You is not clear. The volume is not clear. Echo is there. What is happening? Do let me know so that I would be proceeding. So, any number of the persons who have been so employed to continue to work or to accept the employment. And the new thing जो आपको codes of industrial relation में याद रखना है,
क्या? It includes the concreted casual leave on a given day by 50% or more workers employed in the industry. एक नई चीज आईआर कोड से ऐड हुई है कि अगर 50% और मोर वर्कर ऑफ इंडस्ट्री 50 or more percent workers of industry go on what CL कैजुअल लीव पे 50 लोग या उससे ज्यादा जाते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे? स्ट्राइक कहेंगे. क्या कहेंगे? स्ट्राइक. इट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक. प्लीज रिफ्रेश. क्लियर एवरीवन? नया टर्म जो ऐड हुआ है वो ये कहता है कि अगर 50% या उससे ज्यादा लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग अगर जाते हैं कैजुअल लीव पे एक साथ में, उसे भी हम स्ट्राइक कहेंगे. इको आ रहा है? ओके. Clear? Let's move to next definition. अच्छा ठीक है, let me clear it. Okay, is that clear now? Am I audible and is it fine? Is still there echo? If not, let's move to next definition. I hope it would be clear now. Next important definition is trade union. The important definition is trade union. This is the part of Trade Union Act 1926. Trade union किसे कहते हैं? When a means a combination, whether a temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relation between workers and employers, or between the workers and workers, or between the employers and the employer. A combination of the people, a combination between the employee and employer, workers and employer, workers and workers. ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन में एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो नाउ any combination, whether a permanent or temporary, a permanent or the temporary combination of the employees. Why it is formed? क्यों फॉर्म किया गया? Primarily for purpose of regulating the relations between workers and employers, or between the workers and workers, or between the employer and employer. See, Trade Union Act is your regulative in nature. Regulative यानी ऐसे legislation, this is based on the principle of regulation. Regulative legislation. अब जो लॉज, जो लेजिस्लेशन रेगुलेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, हम उन्हें कहते हैं रेगुलेटिव लेजिस्लेशन. रेगुलेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, और वर्कर्स या वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप अच्छा करना. What extra thing it do? First is it regulates the relationship. Second, it imposes the restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more trade unions. Conduct of trade and business, restrictions लगाता है. ट्रेड यूनियन भी अपने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाता है, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं कि किस तरीके से बिजनेस चलाना चाहिए, किस तरीके से नहीं चलाना चाहिए. Third point is it can include the federation of two or more trade unions as well. Clear? Combination of whether permanent or temporary employees, regulating the relationship and imposing the restrictions. Provided the provision of chapter 3 of this code shall not affect any agreement between partners as to their own business, any agreement between employer and those employees employed by him to as such employed. अब ये 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि जो ये ट्रेड यूनियन फॉर्म होगी, या जो ये ट्रेड यूनियन का एग्रीमेंट होगा बिटवीन द एम्प्लॉयज. सपोज एक ट्रेड यूनियन है, एक ट्रेड यूनियन में एक मेंबर है कॉल्ड ए, बट ए का ऑलरेडी एम्प्लॉयर के साथ में अगर कोई एग्रीमेंट है, तो जस्ट बिकॉज वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है, इनके एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस एग्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली, if there is a trade union in the organization, an employer is having a partnership with any owner, any business, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Any agreement is in consideration of sales of goodwill of the business and instruction, any profession, trade or handicraft.
एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन विल नॉट अफेक्ट द गुडविल ऑफ बिजनेस, ना ही उस पर कुछ असर होना चाहिए, ना ही किसी प्रोफेशन, ट्रेड या फिर हैंडीक्राफ्ट पे। क्लियर एवरीवन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रेड डिस्प्यूट, अगेन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन एक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्प्यूट? एनी ऑफ द डिस्प्यूट, डिफरेंस, डिस्प्यूट मतलब differences, any of the dispute which is related to trade union arising between two or more trade unions or between number of trade unions inter, so it is saying अगर एक ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है उसे भी हम ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट कहेंगे, या अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है तो हम उसे भी ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट कहेंगे। ट्रिब्यूनल, so tribunal is a national tribunal constituted again in the section 44। जब हम 44 जाएंगे तब हम नेशनल ट्रिब्यूनल को डिटेल में पढ़ेंगे। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, दोज अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस जो मेंशन्ड है सेकेंड स्केड्यूल में। सो फर्स्ट स्केड्यूल में क्या मेंशन्ड है कोड के? स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर। सेकेंड स्केड्यूल में क्या मेंशन्ड है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कौन से स्केड्यूल में ये मेंशन है? फिफ्थ स्केड्यूल में। सो नाउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसे कहेंगे? shall have the same meaning as assigned in the clause 1 of section 2 of unorganized worker social security act 2008। so social security act 2008 में जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिफाइन किया गया है सेम डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेजेस की डेफिनेशन क्या है? सो वी आर हैविंग 4 कोड्स, हमने हमारे 4 कोड्स बने हैं अभी। कोड्स ऑफ वेजेस, कोड ऑन आईआर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सर्विस। हाँ, नेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तो डिफरेंट होते हैं, हाँ डिफरेंट है, अलग अलग है प्रणय, नेशनल अलग है और इंडस्ट्रियल अलग है। हम पढ़ेंगे कि वो कैसे अलग है आने वाले सेक्शंस में। 44 में इंडस्ट्रियल है, 48 में नेशनल है। अब वेजेस, वेजेस का मतलब क्या? An employee who is working in industry is supposed to get the wages. So in the name of the wages, what he is getting? All the remuneration, whether a way of salary, whether by the allowances or otherwise. सारे का सारा remuneration, whether it is in the way of salary, whether it is in the form of the allowance, whether in the another form, but it should be capable enough to be expressed in the terms of money, in the terms of money। हाँ अपने दोनों बोल दिए इस, अच्छा सो सॉरी, नेशनल ये अलग होता है, नेशनल अगर अलग होता है और इंडस्ट्रियल अलग होता है। एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी और केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, यानी आपको जो सैलरीज मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं या फिर और कोई चीज मिलती है एज एन वेजेस एंड विच यू कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो या वो केपेबल है मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए, हम उसे वेजेस कहेंगे। बट अगेन द थिंग इज हियर इज कि आपके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड, जो आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब आप जहां पे काम कर रहे हो वहां के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वेदर दे आर एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, यानी आपको रिटर्न में मिले हैं या ओरली मिले हैं, अगर आप वहां काम करते हो वो अंडरस्टूड है, आप एम्प्लॉय हो, आपको वो वेजेस मिलने चाहिए। नाउ वेजेस की डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड है? योर बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेजेस की डेफिनेशन व्हाट डज इट इंक्लूड? द क्वेश्चन कैन बी देयर। सो योर बेसिक पे इज इंक्लूडेड, योर डियरनेस अलाउंस इज इंक्लूडेड एंड योर रिटेनिंग अलाउंस इज इंक्लूडेड। व्हाट इज रिटेनिंग अलाउंस? रिटेनिंग अलाउंस का मतलब क्या? Allowances which are given to talented or important employees in order to retain them in the organization। So wages की definition में included में क्या है? Basic pay है, dearness allowance है, retaining allowance है। ठीक है, next। अब wages के definition में क्या नहीं है, क्या नहीं आएगा definition में? वेजेस के इसमें क्या इंक्लूडेड है, मतलब का इसका मतलब क्या है? अगर कोई एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, एम्प्लॉय अगर उस इंडस्ट्री में काम करता है, हम इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में या इस पर्टिकुलर कोड में हम ले ऑफ कंपनसेशन पढ़ने वाले हैं, हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ने वाले हैं,
ले ऑफ कंपनसेशन अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन एक्ट में, वो 50% होता है ऑफ योर वेजेस, 50% ऑफ योर वेजेस। मतलब जो आप कैलकुलेशन करोगे 50% वो किसके बेसिस पे करोगे, वेजेस के बेसिस पर पे। अब ये वेजेस क्या होंगे, आप ये जो पैसा कैलकुलेट करोगे वो वेजेस में क्या क्या आएगा, बेसिक आएगा, एचआरए आएगा और आपका रिटेनिंग अलाउंस आएगा। ये पार्ट्स आएंगे जो हमारे यहाँ पे मेंशन है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, बेसिक, डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। तो ये जो वेजेस हैं, किसी एम्प्लॉय की सैलरी, किसी को एम्प्लॉय को ले ऑफ देना है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना है, तो 50% ऑफ वेजेस देना है। तो 50% आप किस में कैलकुलेट, किस वेजेस से करोगे, ऐसे वेजेस से करोगे जिसमें बेसिक है, डीए है, आरए है। क्या इंक्लूड नहीं करोगे, any bonus payable which is does not form a part of remuneration payable under the terms of employment। कोई भी बोनस, जैसे हमारा बोनस एक्ट के अंदर जो मिलता है लेजिस्लेशन, ईयरली बोनस, वो सैलरी का पार्ट नहीं होता, वो रेमोरेशन का पार्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट के ऊपर होता है। सो ये आप इसमें कैलकुलेशन में बोनस नहीं डालोगे। अ वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेंटेनेंस और एनी एम्यूनिटी सर्विसेज। ज्यादातर पीएसयूज या कंपनीज हाउस देती है, रहने के लिए क्वार्टर्स देती है, घर देती है। सो जो उस घर की वैल्यू है, जो रेंट है, जो घर का वैल्यू है, वो आपके वेजेस में नहीं आएगा, वो आपके वेजेस नहीं है, आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं, आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। सप्लाई ऑफ लाइट नहीं आएगी, वाटर सप्लाई देते हैं, लाइट सप्लाई देते हैं, वो आपके वेजेस के पार्ट नहीं होंगे। पेंशन और प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, कन्वेंस अलाउंस नहीं होगा, स्पेशल अलाउंस, डिफरे यानी एक्स्ट्रा स्पेशल अलाउंस विच इज एंटाइटल्ड टू हिम बाय नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, रेमरेशन पेबल एनी अवार्ड या सेटलमेंट। अगर कोई अवार्ड या सेटलमेंट आया, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट रहा होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, वो लोग गए थे लेबर कोर्ट के पास या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास, इनके पास ये कंसिलिएशन प्रोसेस भी गए थे या आर्बिट्रेशन में गए थे, इनके थ्रू जो अवार्ड आया यानी फाइनल इंटेरियम आया या कंसिलिएशन में जो फाइनल सेटलमेंट या एग्रीमेंट आया, सपोज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट था, एम्प्लॉय वाज सेइंग मेरे 5,000 रुपए रोक के रखे अभी तक दिए नहीं, एम्प्लॉयर ने कहा हमने दे दिए। सो जब ये कोर्ट में गए, प्रोसीडिंग हुई, प्रोसीडिंग में लेबर कोर्ट ने कहा कि नहीं आपने इनके पैसे रखे हुए अभी तक दिए नहीं। सो ये जो पैसे 5,000 रुपए, ये जो एम्प्लॉय कह रहा था कि मेरे बचे हुए हैं, ये आपका वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। मतलब जब यहाँ पे ये जो अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे कंपनसेशन, वहां पे ये पैसा काउंट नहीं करोगे। ओवर टाइम अलाउंस, किसी भी दिन आपने ओवर टाइम किया है उस दिन का पैसा नहीं काउंट होगा। एनी ग्रेचुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ग्रेचुटी नहीं होगी। एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एनी रिटायरमेंट बेनिफिट या एक्स्ट्रा ग्रेटिया, ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दीज ऑल आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। एक्स्ट्रा ग्रेटिया क्या होता है, when the under the bonus act when the bonus is payable, if you have completed 30 days, आपने 30 दिन ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट कर लिए हैं, you are eligible for the bonus. if any case if you have not completed, आपने नया नया ज्वाइन किया है, in that case आपको एक्स्ट्रा ग्रेटिया मिलता है। understood everyone what is the definition of wages, what is included and what is not included। अब इसके बाद में एक कंसेप्ट है उस नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द डीम्ड रेमरेशन। हम इसको समझेंगे वंस आई गेट अ रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। Have you understood this? Do reply me so that I can move ahead. What do you mean by deemed remuneration? Fine. I hope. Anu, good evening. Welcome. समझ में आया? Okay. अब there is a concept of deemed remuneration. What do you mean by deemed remuneration? ठीक है. Under the definition we have the
वेजेस के डेफिनेशन में वी हैव टू पार्ट्स. वन इज योर included. Let me write here as included. तो included में क्या आएगा आपका basic, आपका dearness allowance and your retaining allowance. Does not included में clause A से लेकर clause I तक, मतलब from PF, your gratuity, your award, settlement, allowance, special allowances, value of house of accommodation, bonus which is not the part of your salary, extra gratia, deferred special pay allowance, ये सारे के सारे क्लॉज ए से लेकर के कहां तक के, यहाँ पे हमारे जो क्लॉजेस हैं वो हैं ए से लेकर के पूरे के तक. कौन से क्लॉज तक? ए से लेकर के तक के क्लॉज. यहां तक के जो ये क्लॉज हैं ए से लेकर के. अब ये सारे के सारे डज नॉट इंक्लूडेड में आते हैं. किस में आते हैं? डज नॉट इंक्लूडेड में. डीम्ड रेम्यूनरेशन की डेफिनेशन कहती है दैट इफ योर सैलरी इज सपोज, इफ योर बेसिक DARA, दिस सैलरी इज सपोज 1000. हाउ मच? 10,000. हाउ मच रुपीज? 10,000 रुपीज. बेसिक DA plus RA. Now, deemed remuneration says that if the sum of from the clause A to K, from A to K, यहां से लेके पूरे के, इन सब की सम यानी PF, gratuity, value of house of accommodation, if it exceed half of this included part, half of included part यानी सपोज 10,000 है, सो इन सब की सम इफ इट इज सपोज 6,000, कितनी? 6,000. सो इट इज एक्सीडिंग व्हाट? एक्सीडिंग हाफ ऑफ दिस 10,000. करेक्ट? 5,000 होता है हाफ, उसको एक्सीड कर रहा है 6,000. सो द एक्सीडिंग अमाउंट कितना एक्सीडिंग है? 5,000 आधा होता है, तो एक्सीडिंग अमाउंट तो ये जो 1,000 रुपए है, तो आपकी सैलरी अब 10,000 नहीं 11 है. ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये 1,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे. सेकेंड केसेस, इन कैश जो सैलरी मिलती है, सपोज फूड कूपन, इन काइंड वाली जो सैलरी मिलती है, जैसे आपको फूड कूपन मिलते हैं, आपकी परचेसिंग अमेजोन के कार्ड्स मिलते हैं, गिफ्ट कूपन्स मिलते हैं. ठीक है? गिफ्ट कूपन्स मिलते हैं. ये गिफ्ट कूपन की अगर जो अमाउंट है वो अगर 15% ऑफ योर वेजेस, 15% ऑफ वेजेस से कम हुई, तो वो आपके डीम्ड रेम्यूनरेशन में आएगी. फिर से समझ में आया? नहीं समझ में आया? let's do it faster. प्रणय एंड एनीबडी एल्स नीड फिर से समझना है? हु नीड्स दिस एक्सप्लेनेशन अगेन? ठीक है. ठीक है? डीम्ड रेम्यूनरेशन में लिख रही हूं. इसके अंदर हमारे वेजेस होते हैं. वेजेस के दो पार्ट होते हैं, इंक्लूडेड. आई एम राइटिंग हियर डज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है? डज नॉट वाला लिख रही हूं मैं. डज नॉट इंक्लूड और होता है इंक्लूडेड. इफ यू आर इंक्लूडेड मतलब योर बेसिक, सपोज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस योर retaining allowance, dearness and your retaining allowance. इनकी हाँ आई विल एक्सप्लेन यू. इनकी सम सपोज कितनी है? 10,000. कितनी है? 10,000. अब डज नॉट इंक्लूड वाले क्लॉज कहां से स्टार्ट होते हैं? ए से लेकर A to K तक. इनकी सम सपोज है 6,000. हाउ मच? 6,000. कितनी है? 6,000. सो if sum of if
सम ऑफ डज नॉट इंक्लूड पार्ट, या फिर फ्रॉम ए टू के, इफ द सम ऑफ ए टू के exceeds 50% of included part, मतलब आपका इंक्लूडेड पार्ट क्या है, बेसिक दिस। सो यानी 10,000 से अगर 50, 10 इसका 10,000, ये 10,000 है, अगर आपका ये सम, इन सब की सम 50% से एक्सीड हो रही है, 50% यानी 5,000, सो ये एक्सीड हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, सपोज किया 6,000 रुपए, तो 6,000 5,000 से कितना ज्यादा है, व्हाट इज एक्सीडिंग अमाउंट, एक्सीडिंग अमाउंट इज 1,000, करेक्ट, exceeding amount is 1,000. So this 1,000 is called as deemed remuneration. यानी आपकी सैलरी या आपके जब वेजेस कैलकुलेट होंगे ना, जब आपका ले ऑफ कैलकुलेट होगा, ले ऑफ रिट्रेंचमेंट और आपका कंपनसेशन, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, तो वहां पे जब आप बेसिक डीए प्लस आरए की टोटल लिखोगे तो केवल 10,000 नहीं लिखोगे, उसमें ये 1,000 रुपए भी जोड़ोगे। इज दैट क्लियर? अब ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है इन काइंड के लिए। इन काइंड सेज दैट सपोज यू आर गेटिंग सम कूपन्स, यू आर गेटिंग सम कूपन्स, यू आर गेटिंग सम शॉपिंग कार्ड। ये जो शॉपिंग कार्ड और कूपन मिलता है, इफ देयर वैल्यू, देयर अमाउंट इज लेस देन 15% ऑफ इंक्लूडेड पार्ट, यानी इसका 15% यानी 1,500 रुपए, क्या होगा लेस, 1,500 रुपए, राइट। अगर कोई भी अमाउंट नॉट, ये कोई भी, ये जो आपको कैश दिया गया है, आपको जो कूपन दिए गए हैं, शॉपिंग कार्ड दिया गया है, सपोज 1,000 रुपए का दिया, द कार्ड इज गिवन टू यू ऑफ 1,000 रुपीज, तो ये जो 1,000 रुपीज है ये 15% से कम है, सो ये ऑटोमेटिकली आपके यहां पे काउंट होगा। कहां काउंट होगा, इस डीम्ड रेमरेशन में। सो इसे हम कहेंगे डीम्ड रेमरेशन, ठीक है। सपोज ये इन काइंड आपको 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए का कार्ड मिला है, ये क्या है, लेस देन 15% है, किसका 15% लेस, इसलिए इसका, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डीम्ड रेमरेशन पार्ट होगा और ये यहां पे काउंट होगा। Is that clear, everyone? Now, this was the deemed remuneration का concept. I hope it's clear. Now, let's move to next definition. Everyone, worker. अब worker की definition में, worker की definition में कौन included है, कौन included नहीं है। Any person except an apprentice is defined. Same definition है। सी वेजेस की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो चारों के चारों कोड्स में सेम है, जो हम वर्कर की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो चारों के चारों कोड्स में सेम है। मींस एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय एन एम्प्लॉयर इन द इंडस्ट्री टू डू एनी काइंड ऑफ मैनुअल स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशनल और क्लरिकल और सुपरवाइजरी लेवल। कोई भी एक एम्प्लॉय, एक पर्सन, एक्सेप्ट मतलब वो अप्रेंटिस एक्ट में कवर नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर हैं वो वर्कर नहीं कहलाएंगे। So any person who is employed by the employer to do any kind of work, whether their terms of the employment is expressed or employed, लिखित हो या नहीं हो. The new things that been added by the codes is that worker will include working generalist, sales promotions and sales promotion employees and any other person who has been dismissed, discharged, retrenched or otherwise terminated in connection or as consequence of the dispute or whose dismissal, dismiss, retrenchment has to be held as dispute. So आपके जो dismiss हुआ है, discharge किया है, retrench किया है, terminate किया है, इन सभी को नहीं, HRM का सेशन में नहीं लूंगी फिर, लकी I won't take it, ठीक है। तो आपके वर्किंग जर्नलिस्ट को एड ऑन कर दिया है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज को एड ऑन कर दिया है, इन सभी को वर्कर्स की डेफिनेशन में एड ऑन किया है। सो दीज आर वर्कर। डज नॉट इंक्लूड आर्मी, एयरफोर्स एम्प्लॉय, ये लोग नहीं आएंगे वर्कर की डेफिनेशन में। एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस और द एम्प्लॉय ऑफ द प्रिजन, एनी पर्सन हु इज इन द मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी and a person who is in the supervisory
whose wages are exceeding 18,000 rupees. How much? 18,000 रुपीज. सुपरवाइजरी के लेवल पे काम करने वाले लोग जिनकी सैलरी 18,000 रुपीज से एक्सीड करती है वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. रिमेंबर आईआर कोड में 18,000 है और कोड ऑफ वेजेस की कोड में 15,000 है. ये जो लिमिट है कोड ऑफ वेजेस में 15,000 है और आईआर की कोड में 18,000 है. So these are not included. They are not the worker. Army, Air Force, employee, police service, employee of the prison. ठीक है. So this was the definition of the worker. This is very important. You should remember this has been added. Okay. Just a second. Okay, so that was the last definition. We are done with all the definitions अंडर दी कोड ऑफ आईआर. सारे के सारे डेफिनेशन हम कर चुके हैं. सेक्शन 2 आर वर्कर वाज द लास्ट डेफिनेशन. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन. यू अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. वेजेस का डेफिनेशन जरूरी है, वर्कर का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. आई होप अंडरस्टूड इट. द सेशन वाज समथिंग विच आई मेड यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्लास में वी वुड स्टार्ट एक्चुअल सेक्शंस जहां पे हम सबसे पहले इस कोड के अंदर ट्रेड यूनियन के कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. आई वोंट बी एबल टू टेक टुडेज क्लास फॉर ह्यूमन रिसोर्स. वी वुड बी डूइंग प्लानिंग वाला क्लास लेटर. ठीक है. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक दिस सेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.